1947 সালে মাঝামাঝি সময় পুরো ভারত যখন দীর্ঘ 200 বছরের ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির উৎসবে মেতে উঠেছিল, ঠিক অন্যদিকে আরেকটি খবর রাতারাতি স্বাধীনতার মুক্তির আনন্দের থেকে অনেকাংশে বেশি সাধারণ মানুষের কাছে বিষাদে পরিণত হয়েছিল। অখণ্ড ভারতের মানচিত্র আবারও একবার খণ্ডিত করা হয়। স্বাধীন হিন্দু ভারতীয় এবং স্বাধীন মুসলিম ভারতীয়দের ধর্মের ভিত্তিতে দুটি দেশে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রাতারাতি আদেশ জারি করা হয় হিন্দু এবং মুসলিমদের ধর্মের ভিত্তিতে নিজের দেশে অবস্থানের নির্দেশ। আবার একবার অখণ্ড ভারতের সাধারণ মানুষ দেশ বিভাজন নীতির মর্মান্তিকতার পরিস্থিতির শিকার হয়। দেশভাগের শিকার মানুষ আজ ওই পরিস্থিতিকে ইতিবাচক বলে কখনো মানেন না। চোখের পলক পড়তে না পড়তে নিজের জমি বাড়ি পূর্বজদের স্মৃতি ছেড়ে ক্রস দূরে রিফিউজি হয়ে থেকে যাওয়াটাও অতটা সহজ ছিল না ওনাদের জন্য। ওই সময় দেশভাগের আওতায় পড়ে প্রায় 10 মিলিয়ন মানুষ, তার মধ্যে 1 মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে খোলা আকাশের নিচেই মারা যান। 1947 সালে ধর্মীয় বিভাজনে সাধারণ মানুষকে যে প্রতিদান দিতে হয়েছিল, 2025 সালে দাঁড়িয়েও পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলা এবং ভারতের পাল্টা জবাব অপারেশন সিঁদুর প্রমাণ করে দুটি দেশের ধর্মযুদ্ধ শেষ হতে এবং সাধারণ মানুষের প্রতিদানের সময়সীমা শেষ হতে এখনো লম্বা সময় অতিক্রম করতে হবে। ভারত এবং পাকিস্তান দুটি দেশের মধ্যে শত্রুতা যতই বাড়ুক না কেন এবং দুটি দেশ যতই ঘাত প্রতিঘাতে কঠোর নিয়ম কাঠামোর মধ্য দিয়ে যাক না কেন, ভারত এবং পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যখন আমরা কোনো তৃতীয় দেশের অতিথি হয়ে যাই, সেই সময় কে বা ভারতীয় আর কে বা পাকিস্তানি, আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা সবাই প্রবাসী। নমস্কার, আমি পিয়া। আজারবাইজানে বাঙালি পরিবারের আরও একটি নতুন অভিজ্ঞতার গল্পে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকের যে অভিজ্ঞতার গল্পটি আমরা শেয়ার করতে যাচ্ছি তা প্রতিটি ভারতীয় এবং প্রতিটি পাকিস্তানি একবার হলেও জীবনে উপলব্ধি করতে চাইবে। অপর দেশের মানুষেরা কেমন হয়, কেমন হবে শত্রু দেশের সঙ্গে একসঙ্গে যদি কোনোদিন আমাদের থাকতে হয়। আমরাও অতি সাধারণ মানুষের মতন যখন কর্মসূত্রে আজারবাইজানে পাকিস্তান থেকে আসা কিছু দাদা এবং পাকিস্তান থেকে আসা কিছু ফ্যামিলির সাথে পরিচয় হয়েছিল, তখন আমাদের মধ্যেও নানান প্রশ্ন দানা বেঁধেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে গেছি, মানতে বাধ্য হয়েছি কোনো দেশ বা কোনো ধর্ম খারাপ হয় না, খারাপ হয় কিছু মানুষ এবং তাদের ধারণা। চলুন দেখাই আমাদের হিন্দু ভারতীয় এবং মুসলিম পাকিস্তানের কেমন সম্পর্ক আজারবাইজানে। ऐसा ना कि इमरान हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ, पाकिस्तान सिटी। ये हरी नहीं 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 मैं नवीद अहमद हूँ, इस्लामाबाद रोड 26। I am Mudhuman from Tamil Nadu. I'm Adnan from Lahore, Pakistan. And I'm Divyendu from West Bengal. कि सुना था कि जो लैंग्वेज है दिलों को जोड़ती है, इस चीज़ का एहसास यहाँ आकर हुआ। सबसे पहली चीज़ कि जब हम सेम लैंग्वेज बोलते रहे, भाभी से बोली, तो मतलब उस चीज़ का एहसास हुआ कि हम लोग बहुत करीब हो गए। क्योंकि भाषा है क्या, लैंग्वेज है क्या, इस वजह से हम जो है वो अपने आप को करीब महसूस करते हैं। इतना दूर होकर भी, मतलब आप इंडिया में थे, हम पाकिस्तान में थे, तो इस चीज़ का एहसास यहाँ आकर हुआ कि दोनों देश एक ही हैं, दोनों मुल्क एक ही हैं। वाइफ का एक बात तो हर टाइम उसका बोलना ऐसा ही रहता है, ये पाकिस्तान के बंदे इतना प्यार से बात करते हैं ना, इतना प्यार से बात करते हैं, इतना रिस्पेक्टफुल बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने एक्चुअली आने के बाद मैं ये चीज़ नोटिस किया कि मैंने बोला भी है इसको, तो मैं बोलता ही हूँ कि तुम क्यों ट्रांसफॉर्म आए हो, कोई चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हो तो शुगर नहीं लगेगा भाई। तो ये चीज़ है। तो स्वीटनेस लैंग्वेज में भी है, एटीट्यूड में भी है। हर वक्त शहद उनके निकलता रहता है ना, शहद की नहरें चलती हैं। नहीं अच्छा है। तो ये मेरा तो खुद जो है ना, ये इंडियन के साथ पहला एक्सपीरियंस था, खासकर
हिंदू जो थे उनके साथ पहला था। मुसलमान भी इंडियन मैंने नहीं पहले उनके साथ नहीं ज्वाइन कहीं भी वर्क नहीं किया। और दूसरा हम तो अपने जब जाते हैं छुट्टी पे घर में भी बताते हैं उधर भी कंट्री में भी कि इंडियन के साथ हम हमारा कैसा बिहेव है, बड़े अच्छा वो भी बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। खाने हम आप लोगों के बहुत सारे खाने जो हमने पहले नहीं टेस्ट किए थे इधर आके टेस्ट किए, तो वो एक बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छे खाने इंडियन के, खासकर साउथ के ये भाई बैठे हैं इधर, सांबर वाला सांबर स्पेशलिस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें नई हमने देखी हैं और खाई हैं, और बाकी बातचीत तो चलती रही है, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा बहुत तो रहता है, वो कुछ बाई बर्थ बंदे का चल रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान वो सब में है, लेकिन बाई द लास्ट देखें तो कोई इतना नहीं है। वो ऐसे ही लगता है कि हर चीज़ जो है ना लेकिन मेरा तो अभी आप लोगों से मिलने के बाद बिलीव मी, मैं कभी नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तान घूमने जाऊंगा। ट्रस्ट इट्स माय बॉटम माय हार्ट, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं पाकिस्तान घूमने जाऊँ मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन आफ्टर मीटिंग विद ऑल ऑफ यू ना मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई कांट आई गो, एक बार तो जाके मुझे भी देखना है पाकिस्तान कैसा है। बिकॉज मुझे जो मीडिया में दिखा है आज तक वो मुझे सही नहीं लगता है आज के डेट में। तो मुझे एक बार एटलीस्ट पाकिस्तान में एज ए टूरिस्ट जाना है। नहीं, मोस्ट वेलकम आप आए, हम वहाँ रहेंगे तो आपकी जाना चाहते हो भैया इंडिया से? Yes, Would you like to go to yes, Pakistan? definitely. So, I'm just telling भी you ये that उम्मीद once at least I can go to Pakistan to see the. But I think he is not sure to go there. No, actually he is unable to understand Hindi. हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि वीज़ा में आसानी हो, हम भी वहाँ जाएं, आप लोग भी इधर आएं। एक बार अगर वीजा का ये हो जाए ना तो ये जो दूरियां है ना पास हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। ये चीज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा है भाई। मेरा यहाँ का अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा क्लोज पर्सन्स मिला है यहाँ पे। दो दूर दूर देश हो कि दूर दूर स्टेट हो, बट आई मिक्स अप वेरी क्लोज फ्रेंड सर्कल्स की तरह मिक्सअप हुआ हूँ मैं आज तक यहाँ पे, एंड मुझे रिटर्न भी उतनी ही अच्छी तरह से मिला है। क्योंकि कल्चर सेम, ज़बान सेम, खाना पीना सेम, तो यही चीज़ें इंसान को मिलाती हैं। तो उस चीज़ का हमने यहाँ पर आकर इंसान तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक वर्ड हो जाता है, लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने सबसे मिला मुझे तो ये मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस। नहीं, आपके क्या पहले क्या इमेजिन था कि पाकिस्तान में क्या लोग कैसे? नहीं, मैंने मेरा लोगों के हेटरिज्म के बारे में सुना था कि इंडियंस को देख के हेट करते हैं, इंडियंस के ऊपर ये करते हैं, इस टाइप का चीज़ है। इंडिया के बारे में ये पढ़ाया जाता है, इंडिया में ये है, ये सब चीज़ मैंने सुन के आया था। how is the impression before? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ऐसा Before that बिल्कुल नहीं impression है, is नहीं, like that. ऐसा बिल्कुल But नहीं है। how is it now? ऐसा हो तो फिर हम अभी आपके जो साथ मेरा बैठे ना हो। इम्प्रेशन ये है कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स सही ढंग से ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में सबको ट्रीट कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग ना, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सबसे। हमें मेजरली पॉलिटिकल्स रिलीजियन से मतलब नहीं है, हमें तो जो भी बिहेवियरल चाहिए दैट इज ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में, वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिला। और मैं उसी बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 प्यारा है पाकिस्तान के पीपल्स के साथ। एंड ऑफ कोर्स एंड ये अजरबैजान में सर्वाइविंग का तो मेजर सपोर्ट वोट भी तो मैंने यहीं से लिया है ना। So, yeah, आज सुबह भी so we are easily connected socially actually. Socially we are सोशली कनेक्टेड, और कोई भी हेल्प आज तक मैंने किसी को भी मांगा है, वो अदनान हो किसी को भी मांगा है, इसको वो मैंने सबको सबसे मुझे वो हेल्प मिला है। Don't worry, I'll send you the document also. Don't worry about it, that I'll send. चलें जी, बहुत अच्छा सफ़र रहा जब तक थे। आगे भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका सफ़र आसान हो। মনে হতেই পারে ভারতীয় হয়ে শত্রু দেশের সম্পর্কে এত ভালো ভালো কথা আসে কি করে। ওই যে বলেছিলাম না, কোনো দেশ বা কোনো ধর্ম খারাপ হয় না, খারাপ হয় তো শুধুমাত্র মানুষ জাতি। আজারবাইজানে পাকিস্তান থেকে আসা সুশিক্ষায় শিক্ষিত কিছু পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বলতে পারেন। পরিবারের কেউ হসপিটালাইজড হোক বা বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনাই ঘটুক, আমাদের এখানে কেউ না খেয়ে বা দুঃখে একাকিত্বে কখনো থাকে না, একে অপরের পাশে সব সময় ঢাল হয়ে থেকে যায়। সারা জীবনের সেরা সেরা উপলব্ধির মধ্যে অন্যতম এক সেরা উপলব্ধি এ আমাদের। आपके सिटी का नाम क्या है ये तो बताएं। सिटी तो कोलकाता है। कोलकाता क्यों कहते हैं? कोलकाता क्यों कहते हैं, नाम दिया है भाई, वही बोलते रहे थे। कोलकाता नहीं,
देखो पहले तो আজকের দিনে বিপদ এলে সর্বপ্রথম নিজের পরিচিত মানুষটাই সরে যায়। সেই সময়টায় দাঁড়িয়ে দুটি শত্রু দেশের কিছু পরিবার একসাথে মিলেমিশে প্রবাসী হয়ে থাকছে। এর থেকে বড় পাওনাই আর কি বা হতে পারে বলুন। मतलब हमारे सुनने में ऐसा- आई थी कि आप लोग जो है वो चावल और फिश की बिरयानी खाते हैं और एक साथ जो है वो कांटे ले जाते हैं अंदर और कांटे अंदर ही कहीं जमा करके निकालते हैं। क्या ये सच है? नहीं नहीं बांग्लादेश में है ऐसे। बांग्लादेश में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि आम लोगों की रूटीन बड़ी है खाने के दौरान में वो जो उसके कांटे होते हैं वो एक जगह साइड पे आप स्टोर कर ले रहे हैं या जैसे उसको जैसे पान खा रहे हैं ना, पान खा रहे हैं एक साइड पे किए हुए ऐसे। उन्होंने भी कहा कि ये करते थे। पता नहीं गलत। मैंने तो कभी मतलब देखा भी नहीं है, बट ऐसा है कि कांटे को हर टाइम पूरा कांटा निकाल निकाल के उसके बाद के जगह पे भी कोई को है पूरा पीस को लेके कांटा ऐसे मुंह से निकाल लेते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन ये साइड में जमा करने वाला प्रोसेस सुना ज्यादा था हमने वैसे। नहीं ये पता क्यों हमारे कौन सी तकनीक बांग्लादेश से जब इस पाकिस्तान था ना लोग आते जाते थे ना हाँ। उन दिनों की बात है, लोगों के वो एक्सपीरियंस है कि वो बंगाली जो है ना वो जब मछली खाते थे तो वो ऐसे तेज तेज, क्योंकि उनकी रूटीन बड़ी अच्छी है खाने की, तो वो एक साइड पे करते जाते थे, वो जो मीट है वो अंदर जा रहा ये मुझे लग रही है कि बंगाल में फिश इतना खाया जाता है इस वजह से कभी नहीं नहीं ये शायद पुराना कुछ होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब पुराने टाइम में बांग्लादेश वाला पाकिस्तान में आता था तब का बात, शायद तब का स्टाइल होगा कुछ ऐसे साइड होगा में। ना, शायद अभी भी हो बांग्लादेश में। नहीं 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 बांग्लादेश में तो मैंने देखा है ना, नहीं है मैं तो बांग्लादेश में 3 साल रहा भी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कांटा चुन चुन के। लेकिन अगर बांग्लादेश का वो हिलसा खाओगे ना मजा आ जाएगा, मस्त है, बहुत प्यारा फिश है। প্রবাসে একটা ডাক রিয়েলিটির কথা না বললেই নয়। বড় বড় উন্নত দেশের সংখ্যায় অনেক ভারতীয়, অনেক পাকিস্তানি বা বাংলাদেশিরাও আছেন। বিপদে আপদে নিজের নিজের দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, চিনতে পর্যন্ত অস্বীকার করে দেন। সেই দিক থেকে আজারবাইজানে ইন্ডিয়ান কমিউনিটি হোক বা পাকিস্তানি, এই ধরনের পরিবেশ কিন্তু একদমই নেই। তবে 2-10 জনের ব্যতিক্রম এদেশেও আছে বয়কি। সবার চাপে পড়ে ওনারা কেউই এত সুন্দর পরিবেশটাকে, যা বছরের পর বছর পরম্পরায় চলে আসছে, তা নষ্ট করার দুঃসাহস দেখান না। ऐसा तो नहीं क्या? कुछ इंडियन अच्छे थे, कुछ इंडियन थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल कैसे थे यार? नहीं हमारे शुरू में तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुश्किल वैसे अभी तो कोई भी नहीं लगे यार। इंडियन सारे ही ठीक रहे हैं। इंडियन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम लहदा हैं, एक ही कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, खाना पीना भी तकरीबन एक जैसा ही है, तो एक जैसे ही रहते रहे, बैठ के खाना खाते रहे, वो बनाते थे हम खाते थे, हम बनाते थे वो खाते थे, कभी ऐसा हमें इशू नहीं हुआ कि हम कहीं किसी और कंट्री। नहीं, आप पहले इंडियन के साथ काम किए हैं क्या? अब मैंने किया है, आपने किया है? मैंने किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और मैंने नेपाली के साथ भी किया है, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मज़ा आया। यहाँ का तो खैर अभी रिसेंट है एक्सपीरियंस। मैंने इमरान को बताया था जब यहाँ आया था, दोस्तों कौन थे, मोस्टली सब इंडियन थे और मैं अकेला पाकिस्तानी था। बड़ा अच्छा है, मतलब एक सपोर्ट किया था स्पेशली फूड में, और उसके बाद फिर गेट ऑन हो गए, बहुत अच्छा रहा, कभी महसूस ही नहीं हुआ इंडियन पाकिस्तानी। एक्चुअली अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने कभी पाकिस्तान के कोई बंदे से कभी मुलाकात हुआ नहीं, पर्सनली मुलाकात नहीं हुआ। यहाँ पे आके मैं पहली बार पाकिस्तान के पर्सन से मिला, एंड अगर मेरा फीलिंग्स पूछोगे तो ऐसा है कि बिहेवियरल वाइज एंड एवरीथिंग मुझे तो बहुत ज़्यादा ये हुआ, क्योंकि मीडिया जो हमें बताया जाता है ना, से प्रोमोट करते हैं, वो चीज़ मेरे को आज तक कभी फील नहीं हुआ। यहाँ पे देखा कि इतना पीपल्स आर जेंटल, मीन्स यहाँ पे पाकिस्तान के मैं सारे बंदे की बात कर रहा हूँ, जितना बंदे हैं नॉर्मल लोग हैं ना, तो वो जो नहीं इंडिया में होते हुए नॉर्मल है। नहीं तो इतना जेंटल है, हेल्पफुल इन नेचर है, मुझे तो कभी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा देखो, मैं बांग्लादेश में भी था, बांग्लादेश में भी मैंने काम किया है, वहाँ पे भी ये किया, पाकिस्तान के पर्सन के साथ पहले बात। और मेरा तो सबसे बड़ा ये मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता
कि एक रात को अदनान जी खुद आके रात को 10:30-11 बजे खाना खिलाया था, क्योंकि खाना ख़त्म हो गया था। और वो चीज़ मैं पूरा लाइफ भर नहीं भूल सकता। मतलब ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं। ये होता ही है, जैसे आप जिक्र कर रहे हो कि मैंने आपके साथ कुछ गुड डीड की, मेरे साथ भी इस तरह इंडियंस ने बहुत अच्छी गुड डीड्स की हुई है। तो ये बोथ साइड्स होता है। ये वैसे मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था इंडियन के साथ, तो हमें भी ऐसे ही मीडिया में काफ़ी चीज़ें मिलती थी कि वो ऐसे हैं, कुछ रिलीजन वाइज भी थे हमारे जहन में चीज़ें, आपके भी थे। तो लेकिन जब यहाँ आए हैं तो हमें पता चला है कि नहीं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है हमें। सिर्फ खाने पीने तक नहीं, रहना उठना बैठना, साथ जाते हैं, बाहर घूमते हैं, पता नहीं पूरा आज़रबाईजान हमने फिरा इकट्ठे। দুটি শত্রু দেশের কিছু পরিবার যখন একসাথে থাকেন, দেশের নীতির বিপক্ষে গিয়ে ইতিবাচক কথা বলছেন, তাহলে এমনটা নয় তো আমরা দেশকে ভালোবাসি না? এমনটাও কিন্তু একদমই না। দেশের বাইরে আসার পর তো আমরা দেশের আসল মর্ম বুঝতে শিখেছি, দেশকে বেশি পরিমাণে ভালোবাসতে শিখেছি। আমরা এখানে সবাই নিজের নিজের দেশকে ভীষণ ভালোবাসি, শুধুমাত্র একে অপরের দেশকে ডিসরেসপেক্ট করি না, এইটুকুই। নিজের দেশের সংস্কৃতির কথা গর্বের সাথে শেয়ার করি, কিন্তু অপর দেশটি কতটা অপসংস্কৃতিতে ভরা সেই কথা আলোচনা করার দুঃসাহসও আমাদের আসে না। আমরা খুবই অতি সাধারণ মানুষ। কর্মসূত্রে আমরা সবাই প্রিয়জন নিজেদের বাড়ির অনুষ্ঠানগুলি ছেড়ে দূরে থাকি। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে এমনও হয় রাত্রে না ঘুমিয়ে অফিসে এমার্জেন্সি ডিউটি করতে হয়। প্রতিটি দুর্গাপুজোয় আমাদের কলকাতা এবং প্রতিটি ঈদে ওনাদের পাকিস্তান যাওয়াটুকু পর্যন্ত সম্ভব হয় না। এইসব ঘটনার সাক্ষী থাকি আমরা একে অপরের। এমনটাও হতে পারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের এই ছন্দেই কাটবে। শেষ জীবনে কখনো একদিন হবে হয়তো নিজের জন্মভিটেতে ফেরা। একে অপরের কষ্ট অনুভূতিটুকু বুঝে যদি প্রবাসী জীবনটাকে আনন্দে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে পরিপূর্ণতার সাথে কাটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মন্দ কি? আর সবার থেকে বড় কথা, আমাদের ব্যবহারটাই কিন্তু আমাদের নিজের দেশের পরিচয় বহন করছে। अच्छा नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी किसी बंगाली फैमिली के साथ, बिल्कुल एक फैमिली की तरह महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। वी आर वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू। ऐसे आप स्वीट तो हो ही। कभी वही बोल रही हूँ कि एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि कभी ऐसा मौका मिले तो क्यों नहीं आना चाहिए, हाँ, आना चाहिए। हमें आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा कि वो चीज़ क्लियर हुई कि हमें आना चाहिए, मतलब एक बंगाल जाना चाहिए इंडिया, और उन लोगों को भी आना चाहिए पाकिस्तान। उन लोगों को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है, और हम लोगों को भी देखना चाहिए। আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানিদের আজারবাইজানের বন্ডিংয়ের গল্পটি এখানেই শেষ করছি। আগামী ভিডিওতে আসবো আজারবাইজানের হাট নিজামি স্ট্রিটের আমাদের অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে। আশা করছি ওই ভিডিওটিও আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে। আপনাদের যদি আমাকে এবং আমাদের বাঙালি পরিবারের গল্পগুলি ভালো লেগে থাকে এবং পরবর্তীকালে ভিডিওগুলি দেখব মনে করেন, তাহলে আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার। কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মূল্যবান মতামতও জানাতে পারেন। আপনারা খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।